ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی حکومت میں رہنے کے باوجود اپنے ہی مطالبات کی منظوری کے لیے 200 لوگ بھی نہ نکال سکی۔ آخر اس احتجاج میں عوامی جوش و خروش کیوں نہیں دیکھا گیا؟ تفصیلات جانی بھٹی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ جس کے پاس میں 2 MNA، 3 MPA، میئر، ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین، UC چیئرمینز اور وارڈ کونسل کی سیٹیں موجود ہیں، اپنے ہی مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج میں 200 لوگ بھی نہ نکال سکی۔ آخر اس احتجاج میں عوامی جوش و خروش کیوں نہیں دیکھا گیا؟ دریائے سندھ سے نکالے جانے والے 6 کینالوں کے خلاف پیپلز پارٹی نے احتجاجی مظاہرہ تو کیا، مگر مظاہرے میں شرکاء کی تعداد انتہائی کم رہی۔ احتجاج میں پارٹی کی مرکزی اور سینئر قیادت غیر حاضر رہی، جبکہ حکومتی ذمہ داروں میں سے صرف سندھ حکومت کے ترجمان ارسلان اسلام شیخ شریک ہوئے۔ الٹیمیٹلی اگر یہ کینال بنانے کا سوچ رہے ہیں تو ہمارے سندھ کے پانی کے اوپر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، جو ہم کبھی نہیں کریں گے۔ اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس بات کا کیٹیگورکلی اعلان کر چکے ہیں کہ کسی بھی صورت میں یہ کینالز منظور نہیں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف وہی موقف ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہادت سے پہلے اپنی حیاتی میں کمبوج شہید کے دھرنے میں دیکھے گئی کہ کسی بھی صورت میں ہم پانی کے ایک قطرے کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ دوسری جانب عوام نے پیپلز پارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے علیحدگی اختیار کرے اور اس منصوبے کی منسوخی کے لیے عملی اقدامات کرے۔ کیمرہ مین حمید گل کے ساتھ جانی بھٹی، 5 نیوز، سکھر۔ عید پر خوبصورت نظر آنے کے لیے جہاں خواتین نے سیلون کا رخ کر لیا، وہاں پر مرد حضرات نے پرکشش نظر آنے کے لیے بھی سیلون کا رخ کر لیا، جہاں پر فیشل کٹنگ، فیس واش کروایا جا رہا ہے۔ تفصیلات ملتان سے شاہد امین کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ جی، چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں شروع۔ جہاں خواتین عید پر خوبصورت نظر آنے کے لیے سیلون کا رخ کر رہی ہیں، وہاں پر مرد حضرات بھی عید پر خوبصورت نظر آنے کے لیے سیلون میں جا کر فیشل اور کٹنگ کروا رہے ہیں۔ جیسے نئے کپڑے سلا کر لوگ خوشی مناتے ہیں، ایسے سیلون پر بھی جانا چاہیے، وہی چہرہ وغیرہ فریش کر کے دوستوں سے ملنا ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، ان کی طرف جانے کے لیے یہ سیلون کا رخ کرنا بھی ضروری ہے۔ عید صرف خواتین کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ کیمرہ مین عادل چودھری کے ساتھ شاہد امین، ملتان۔ میرپور خاص میئر عبدالرؤف غوری نے ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے سویٹ ہوم کے معصوم بچوں کے احساس میں دیے گئے افطار ڈنر میں شرکت کی۔ میرپور خاص میں میئر عبدالرؤف غوری نے ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے یتیم بچوں کے ساتھ افطار کیا۔ میئر عبدالرؤف غوری کا کہنا تھا کہ ماہ رمضان میں ایسے بچوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور ان بچوں کے ساتھ آج شامل ہو کر دلی سکون محسوس کر رہا ہوں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر میرپور خاص ڈاکٹر رشید مسعود اور دیگر معززین بھی موجود تھے۔ عید کے موقع پر جنگ پولیس کا خواتین کو مارکیٹس میں تحفظ فراہم کرنے کے لیے احسن اقدام، اسٹریٹ کرائم، سنیچنگ، ہراسمنٹ اور دیگر جرائم کی روک تھام کے لیے لیڈیز اسکواڈ تشکیل دی۔ مزید تفصیلات ہمارے ساتھ موجود ہیں جنگ سے عمران انصاری۔ عمران سے لیں گے۔ جی عمران تائیگا۔ جی بالکل، خواتین کو عید الفطر پر تحفظ فراہم کرنے کے لیے DPO جنگ کی جانب سے احسن اقدام کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے خواتین کا اسکواڈ اور موٹر سائیکل پر اور پیدل گشت کے طور پر بازاروں کا گشت کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے خواتین کو کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ اور پریشانی سے بچنے کے یہاں پر خواتین تعینات ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ انچارج موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی ایکچولی سر، یہ ہماری CM صاحبہ کا انیشیٹو ہے کہ خواتین کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، اور اسی انیشیٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے DPO صاحب نے یہ اسکواڈ تشکیل دی ہیں، جو کہ دن رات پیدل گشت بھی کر رہے ہیں اور بائک پہ بھی گشت کر رہے ہیں، تاکہ کسی بھی قسم کی سنیچنگ، ہراسمنٹ یا کسی بھی قسم کی خواتین کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوتی ہے تو اسے فوری طور پہ قابو میں کیا جا سکے۔ جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اس حوالے سے خواتین کو بھی جو ہے بالکل ان کو کسی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ آسانی سے اپنی بازار میں خریداری کر سکتی ہیں۔ جی، صحت عامہ کا تحفظ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کی 2 بیکریوں اور 1 پنسار اسٹور کا معائنہ۔ 100 کلو ممنوعہ ملک پاؤڈر، 12 درجن خراب انڈے، تلف فوڈ بزنس مالکان کو 2,20,000 روپے کے جرمانے عائد۔ کارروائیاں محلہ قریشیاں، شاہی روڈ، قائد ملت روڈ اور ظاہر پیر میں کی گئیں۔
पाक पतन साबिका मेंबर सूबाई असम्बली मियां नवेद अली की जानिब से पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। पाक पतन साबिका पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब मियां नवेद अली ने अपने वालिद सीनियर सियासतदान राना अहमद अली आराई शहीद की बरसी पर इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें सीनियर लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़, साबिका ज़िला नाज़िम मियां मोहम्मद असलम सुखेरा, सियासी शख्सियत और लादेगंज शकर, दीवान फरीद उद्दीन चिश्ती, सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। राना अहमद अली शहीद की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। वफाकी मुहतसिब आला एजाज अहमद कुरैशी की हिदायत पर एडवाइज़र टू वफाकी मुहतसिब गुलजार भट्ट ने लेस्को ऑफिस कसूर में खुली कचहरी का एहतमाम किया। साल के आगाज से वफाकी मुहतसिब को मौसूल होने वाली 13,000 दरख्वास्तों पर कार्रवाई करते हुए सालिन को रिलीफ फराहम कर दिया गया। कसूर से सजाद अंसारी की रिपोर्ट देखिए। वफाकी महकमों के मुतल्लिक़ शिकायत को सुनने और साइलिन को रिलीफ फराहम करने के लिए रमजान मुबारक में भी लेस्को ऑफिस कसूर में वफाकी मुहतसिब आला एजाज अहमद कुरैशी की हदायत पर एडवाइजर टू वफाकी मुहतसिब गुलजार अहमद भट्ट ने खुली कचहरी लगाई। लेस्को सार्फिन को मसूल होने वाली शिकायत को हल करने के लिए फौरी अहकाम जारी किए। मुआवजा वालों ने हमें तकरीबन 73,000 रुपये का बिल डाला। फिर हमने कंप्लेन वफाकी मुहतसिब पे की और उन्होंने आज कसूर में आकर हमारा केस सुना और हमारा बिल जो है पूरे का पूरा माफ़ कर दिया है। तो हम उनके मशहूर हैं और ये अदारा हमारे लिए बहुत मुफीद साबित ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਵੇ ਆਏ ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ रिलीज मैंने मिला बिल। इस मौका पर एक्शन सिटी मराज खालिद भी मौजूद थे। वफाकी मुहतसिब आला एजाज अहमद कुरैशी ने हमेशा अवाम को इनके दहलीज पर रिलीफ फराहम करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। इस मौका पर एडवाइजर टू वफाकी मुहतसिब आला गुलजार अहमद भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा 3656 एप्लीकेशन पे इम्प्लीमेंटेशन करवा दिया गया, जो कि के तावन से है अवाम तो मुहतसिब का अदारा मसलन लोगों को उनके दहलीज पे इंसाफ पहुँचाने शुरू में है और उनकी हो रहा है और लोग मुतमिन हैं। वफाकी मुहतसिब आला की तरह अगर तमाम अदारे दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाए तो मसाइल का यकीनी खात्मा मुमकिन हो सकता है। अच्छी कारकर्दगी पर वफाकी मुहतसिब का अदारा राज तहसीन का मुस्तहिक है। कैमरा टीम के साथ सजाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। ईद उल फितर करीब, खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। शहरियों ने सफ़ेद और गोल्डन तिले से बने जूतों की खरीदारी के लिए खुस्सा और खेड़ी की दुकानों का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहरुख खान से। जी शाहरुख बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद की तैयारियां अरूज पर हैं। शहरी कपड़ों की ख़रीदारी के बाद अब जूतों की ख़रीदारी के लिए दुकानों का रुख कर चुके हैं। चंग शहर में तिल्ले वाला जूता जो खासा पसंद किया जाता है वो दुकानों पर काफ़ी तादाद में सेल हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद भी है, इनसे बात करते हैं। जूते की ख़रीदारी करने आए हैं, कौन सा जूता लिया है? ये तिल्ले वाली खेड़ी ली है, ये हमें बहुत पसंद है, इसलिए हमने ये ईद के लिए ये ख़रीदी है। और इन बाबे ने बहुत अच्छी हमारे साथ तावन किया है और ये हम इस वक्त जंग खुस्सा हाउस पे मौजूद हैं और हमें ये खेड़ी बहुत अच्छी लगी, तिल्ले वाली। जी बिल्कुल, शहरी की जानिब से ख़रीदारी का अमल जारी है। उनका कहना है कि ये जंग की एक सकाफ़त है, इसको उजागर करने के लिए तिल्ले वाले जूता ख़रीदा जा रहा है। ईद पर मुनफरिद नजर आने के लिए नित नए मलबूसात खरीदे जाते हैं, लेकिन जब बात हो रिवायती पहनावे की तो खुस्से का जिक्र न हो, ऐसा मुमकिन नहीं। पाक पतन से तारिक सजाद चिश्ती की रिपोर्ट देखिए। ईद पर मुनफरिद नजर आने के लिए नित नए मलबूसात खरीदे तो जाते हैं, लेकिन रवायती खुस्से के बगैर ईद की शॉपिंग अधूरी समझी जाती है। खुस्से में तिल्ले की बेहतरीन कढ़ाई हो या मोती जड़े हों, हर एक खुस्सा एक दूसरे से मुनफरिद दिखाई देता है। ऐसे में कोई सादा खुस्सा पसंद करता है तो कोई नोकदार। हम यहाँ ईद की शॉपिंग के लिए आए हैं। मैंने यहाँ से खुस्सा खरीदा है और मैं वाइट ड्रेस के नीचे पहनूंगा ताकि मैं दूसरा ईद के दिन दूसरे से मुनफरिद नजर आ सकूं। और ये तिल्ले वाला खुस्सा जो है ये पंजाब की सकाफत को उजागर करता है। एक खुस्सा तैयार करने में वैसे तो 10 से 12 दिन लगते हैं और यही वजह है कि ईद के मौका पर लोग पहले से ही इसकी तैयारी का ऑर्डर दे देते हैं। दुकानदारों का कहना है कि 1500 से लेकर 5000 की कीमत तक खुस्सा फरोख्त किया जाता है। कारीगरों का कहना है कि खुस्सा तैयार करने के लिए गाय और बकरे की खाल का चमड़ा इस्तेमाल किया जाता है।
देसी चमड़ा दे खुस्सा बनाने ते बोका चमड़ा लावी दा इंदरवार बकरे खल लावी दी है सादे खुस्से 2 दिन लगते हैं तिले वाले खुस्से दे तकरीबन 5 ਤੋਂ 7 दिन लग जाते हैं बगैर नोक के खुस्सा नौजवानों और आम तबके में काफ़ी मकबूल है, जबकि सुनहरी कढ़ाई से तैयार करदा नोकदार खुस्सा ज़्यादातर जिम्मेदार ऑर्डर पर तैयार करवाते हैं। पंजाब की सकाफत में खास मुकाम रखने वाला खुस्सा ईद की खरीदारी का हिस्सा बन चुका है। कैमरा टीम के साथ तारक सजाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। हाफिजाबाद में ईद से कबल जाली कोल्ड ड्रिंक्स की बड़ी खेप पकड़ी गई। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों ने टिब्बा शाह बहलोल में स्टोर पर छापा मारा और फरोख्त के लिए तैयार मारूफ ब्रांड की 2500 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक जब्त कर ली। जालसाजी का मकरो धंधा करने पर स्टोर मालिक के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। हाफिजाबाद कोल्ड ड्रिंक्स की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। कोल्ड ड्रिंक्स की क्वालिटी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकर्रर करदा मेयार के मुनाफी पाई गई। तर्जमान फूड अथॉरिटी ने कहा मारूफ ब्रांड्स की जाली बोतलों को असल जैसी नकल पैकिंग लगाई गई थी। इंतहाई लाजिम रिकॉर्ड और ज़रूरी दस्तावेजात भी अदम मौजूदगी में पाई गई। खुराक के नाम पर बीमारियां फरोख्त करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। तर्जमान फूड अथॉरिटी ने कहा जालसाजी का मकरो कारोबार करने वालों को निकाल भगाएंगे। खैरपुर में बदअमनी के खिलाफ लुकमान के ताजिरों की शटरबंद हड़ताल, सड़क पर टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। लुकमान की ताजिर बरादरी की रहनुमाओं ने दुकानों के शटर बंद करके सड़क पर टायर नजर आतिश किए और एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बदअमनी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी, शहर में कोई भी ताजिर कारोबार नहीं कर सकता। जैसे ही दुकान खोलते हैं तो मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिल्स पर आकर लूट मार करते हैं और सरेआम फायरिंग भी करते हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस जराइम पेशा अफराद के साथ मिली हुई है। ईद करीब आते ही बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। लोग नए कपड़े जूतों की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं, तो वहीं मर्द हजरात के लिए सबसे ज्यादा रिवायती तिल्ले और चमड़े की चप्पल ही मकबूल है। तफसीलात के लिए देखते हैं खानवाल से अरशद ऐवान की रिपोर्ट। पंजाब के दीगर इजला की तरह खानेवाल में भी तिल्ले वाली चप्पल और खासकर चमड़े की खेड़ियां तैयार की जाती हैं। साइंस के जदीद दौर में अभी भी कारीगर अपने हाथों की कमाल महारत से चमड़े की जूतियां तैयार करते दिखाई देते हैं। तो हमने पहले इसको लुकाई करना होता है पेल्सन के साथ, और फिर इसको करना है लुकाई, कटिंग करके इसको ऐसे लगा के फिर हमारी तरफ से ये जूती ऐसे मुकम्मल होती है। ये हमारा काम है जी बाटरमैन का। ये उसके पहले स्टेप होता है इसका अपर मैनी का। अपर मैनी के बाद आता है ये बाटरमैन के पास, ठीक है। उसके बाद ये चला जाता है फिनिश मैन के पास। और हमारी ये अगवान चप्पल है, खाने वाल के अंदर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था। ये शादी ब्याह हो या ईद के त्यौहार, जूतियों की मांग में इजाफा हो जाता है। और ईद ऊपर से आई हुई है, मैं और मेरी फैमिली के साथ में बच्चे भी हैं मेरे, तो ये खड़ी जूती इनको मुझे पसंद आई है, तो इनका रेट भी माकूल है। तो दुकानदार भी खुश दिखाई देते हैं। कीमत की बात की जाए तो 1000 से 5000 तक रेट जो हमारे मुख्तलिफ होते हैं। रेट तो 1000 से लेके 5000 तक भी होता है। नरोजी होती है, नरोजी डेरे वाली होती है, हमारी मकामी नरोजी बनती है वो होती है। सैंडल स्लीपर अच्छा लेदर का होता है। ईद का सीजन है, नई से नई वैरायटी आई हुई है। तो सदियों पुराने चमड़े के जूते सुन्नत नबवी भी और हमारे बुजुर्गों, बच्चे और बड़ों की पसंद भी। अरशद अमान, 5 न्यूज़, खानेवाल। शेखुपुरा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम ने ईद उल फितर पर फरोख्त होने वाली जाली बोतलों की बड़ी खेप पकड़ ली। पंजाब फूड अथॉरिटी ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर मजीद देखते हैं मोहम्मद शहराज सिंधु की। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शेखुपुरा में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम सीनियर सहाफ़ियों के एहसास में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सहाफ़ियों समेत पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर मजीद देखते हैं मोहम्मद शहराज की रिपोर्ट। मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम सीनियर सहाफ़ियों के एजाज़ में पार्टी के नायब सदर तारक महमूद गुज्जर के डेरे पर अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जहां प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के नुमाइंदगान शामिल हुए। अफ्तार डिनर में पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी अतलात व नशरियात मोहम्मद अब्दुल्ला ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अफ्तार डिनर में सेक्रेटरी जनरल मियाँ हबीबुर रहमान, जिली नायब सदर टिकट होल्डर चौधरी तारक महमूद गुज्जर, सिटी जनरल सेक्रेटरी हाफिज अनामुल्लाह समेत पार्टी रहनुमा और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक थी। जबकि इस मौका पर
पर 5 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अब्दुल्ला समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने फैसला किया कि हम रमजान मुबारक के महीने के अंदर उनके सैर अफ्तार का बंदोबस्त करेंगे। तो इस वक्त लाखों की तादाद में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खिदमत की सियासत का नारा लेकर मैदान अमल में आई है। हमारा मिशन महंगाई बेरोजगारी में पिसी अवाम की बेलौस खिदमत करना है। पूरा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 57 किचन हमारे जो है वो सहरी का खाना तैयार कर रहे हैं जी, और वहाँ से हमारे रज़ाकार ले जाके इलाकों में तकसीम करते हैं। और सहरी में और इसी तरह इफ्तारी में अल्हम्दुलिल्लाह 28,000 से कुछ ऊपर जो है वो लोग मुस्तफीद हो रहे हैं जी। इंशाअल्लाह ताला ईद पैकेज जो है वो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का शोबा खिदमत खलक लोगों तक जो यतीम बच्चे हैं और जो बेवगान हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश में है जी। ये इफ्तारी का जो मकसद है ये तरगीब देना ही मैं समझता हूँ कि इंसानियत की खिदमत के लिए तरगीब देने के लिए साफ़ी बरादरी और मुअज़्ज़िज़ीन को इधर इकट्ठा किया गया कि खिदमत इंसानियत ही असल ज़िंदगी है, और इसको अपनाने के लिए मरकजी मुस्लिम लीग जो जदोजहद कर रही है। तकरीब के एहतताम पर मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शराज संधू, चैनल 5 न्यूज़, शेखुपुरा। हजरत बाबा नौलख हजारी का 521वां 3 रोज़ा उर्स मुबारक इख्तिताम पसीर हो गया। हज़ारों की दतमंदों की शिरकत। इस पर देखते हैं ननकाना साहब से हाफिज मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट। ननकाना साहब की तहसील शाहकोट में हजरत बाबा नौलख हजारी का 3 रोज़ा उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम के साथ इख्तिताम पसीर हो गया। उर्स मुबारक की तकरीब में दूर नज़दीक से हज़ारों अकीदतमंदों की शिरकत। अपनी अपनी मुनाजात के लिए कुरान खानी, दुआ और लंगर तकसीम किए गए। यहाँ पर दरबार शरीफ पर आया, मैंने यहाँ पर दुआ भी किया और यहाँ पर सलाम भी किया। बाबे 9 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ है। रहमतुल्लाह अलैह का 521वां उर्स है, जहाँ पर मुल्क भर से बहुत सारे ज़ायरीन अकीदतमंद यहाँ पे आकर हाजिर हुए हैं और अपनी लिए दुआएं की। तमाम डिपार्टमेंट्स ने अपना बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम थे। हमने भी अपने वसाइल में रहकर तमाम तर जो इंतज़ाम आते हुए ऐसा तरीके से अंजाम देने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उर्स में कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। सज्जादा नशीन हज़रत अली रज़ा शाह मुजावर ने इख्तितामी दुआ फरमाई। दुआ में मुल्क और कौम के अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। ज़िली इंतज़ामिया की जानब से तमाम तार इंतज़ामात बेहतरीन किए गए थे और सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतज़ाम किए गए थे। कैमरा टीम के साथ हाफिज नवीद कंबो, 5 न्यूज़, ननकाना साहब। चिन्योट पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से 7 डकैत गैंग्स मुलजमान समेत डकैती, राजधानी, चोरी की वारदातों में मुलविस 50 से ज़ायद मुलजमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 2 करोड़ 11 लाख रुपए से ज़्यादा मालियत का माल मसरूका बरामद हुआ। मज़ीद जान लेते अपने नुमाइंदे मियाँ मुनव्वर हुसैन से। जी मुनव्वर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में चिन्योट पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुलिस लाइन में। यहाँ पर डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, डकैत गैंग्स के कितने अफराद गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे कितना माल मसरूका बरामद किया गया है? हाँ जी, आज तकरीबन 7 डकैत गैंग्स के कोई 20-21 जो मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और 2 करोड़ 11 लाख मालियत के जो तमाम माल मसरूका है, जिसमें मोटर बाइक्स, मवेशी, सोना, ज्वेलरी और उसके अलावा मोटर और रिक्शे वगैरह शामिल थे। तो आज ये मालकान को उनके हवाले किया गया है और ये हमारी गुज़िश्ता 1 माह की कारकर्दगी। हाँ जी, जैसा कि आपने डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की बात सुनी, उनका कहना है कि 2 करोड़ से ज़ायद का माल मसरूका बरामद करके उनके मालकान के हवाले कर दिया गया है। जी। सिंध से 6 केनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ दादू में वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट करके सेशन कोर्ट के सामने धरना दिया। तफसीलात दादू से अल्लाह खुश की इस रिपोर्ट में देखिए। बार एसोसिएशन की कॉल पर दादू जोही मेहर और तहसील खैरपुर नाथन शाह के वकला ने दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ अदालती कार्रवाइयों का बाइकाट करके सेशन कोर्ट के अहाते के सामने धरना दिया। सिंधु दरिया और उसको भरने वाली नदियों पर इंडस रिवर सिस्टम पर जो कैनाल बनाए जा रहे हैं उनके खिलाफ है। हम ये एहतजाज कर रहे हैं कि फौरी तौर पे इस नोटिफिकेशन को डी नोटिफाई किया जाए और काम रोका जाए। सिंधु दरिया की डेल्टा, सिंधु दरिया पर कोई भी कैनाल हमें कबूल नहीं। नए गैर कानूनी कैनाल निकाल कर
अपनी बंजर ज़मीन पंजाब की जो चोलिस्तान है उसको आबाद करें और सिंध धरती की जो आबाद सरजमीन ज़मीनें हैं उसको गैर आबाद करने के लिए ये नए किनाल गैर कानूनी तौर पर निकाले जा रहे हैं, जिसके खिलाफ सिंध सरापा एहतजाज है। हमारा ये एहतजाज जो है वो सिंधु दरिया के पानी पर जो डाका डाला जा रहा है, सिंध का वजूद जो है हमारे दरिया से, सिंध की ज़िंदगी जो है हमारे दरिया से, अगर हम दरिया ही नहीं होगा तो सिंध कहाँ रहेगी। तो हमारा कहना है कि ये केनाल नामंजूर है। तो दादू में वकला बरादरी ने अदालती कार्रवाइयों का बाइकाट करके एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि दरिया सिंध से जो 6 नहरें निकालने का जो मंसूबा है वो बंद किया जाए। अल्लाह बख्श, चैनल 5 न्यूज़, दादू। इस्लामिया फाउंडेशन के ज़ेर तमाम अहमदपुर शेखिया में सरअफ्तार का रमज़ान दस्तरखान जारी है। हर साल की तरह इस साल भी 10 खुश नसीब अफराद में बसैया कुरानदाजी उम्रे के टिकट की तकसीम की गई। कुरानदाजी में मुअज़्ज़िज़ीन शहर और चेयरमैन इस्लामिया फाउंडेशन हाजी आमिर शहजाद मौजूद थे। मज़ीद जानते हैं मुफीज़ुर रहमान की इस रिपोर्ट में। इस्लामिया फाउंडेशन की तरफ से लगाए जाने वाले रमज़ान दस्तरखान की रौनक जारी है। रमज़ान दस्तरखान में हर साल 10 खुश नसीब अफराद में बज़रिया कुरानदाजी उम्रे की टिकटें तकसीम की जाती हैं। इस साल भी 3 मरहलों में कुरानदाजी के ज़रिए उम्रे की टिकटें तकसीम हुई। आखिरी कुरानदाजी में 3 अफराद को टिकटें दी गईं। कुरानदाजी की इस तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन शहर और चेयरमैन इस्लामिया फाउंडेशन हाजी आमिर शहजाद और इनका बेटा अली मौजूद रहे। आमिर शहजाद चेयरमैन इस्लामिया फाउंडेशन ने तकरीब में शरीक लोगों से गुफ्तगू भी की और इस्लामिया फाउंडेशन के शहर के लिए मजीद प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान भी किया, जिनमें गुर्बत के खात्मे के लिए रोज़गार के मौके पैदा करना, जदीद तालीम के हसूल को अहमदपुर शहर में मुमकिन बनाने के लिए जदीद तालीमी इदारे का क़याम भी शामिल है। जो वादा किया अहमदपुर की आवाम से अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरा किया। इस साल हमने 10 खुश नसीबों को बज़रिया कुरानदाजी मुंतखब किया है। इंशाल्लाह रमज़ान ईद के बाद ये लोग सफ़र करेंगे अपना। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह ने हमें इस मकाम तक पहुँचाया। आज ख़त्म कुरान भी हुआ, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, दस्तरखान का इफ्तार करते हैं, सैर करते हैं। मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि ये सिलसिला ऐसे लगा रहे। आपकी हाज़िरी कबूल फरमाया। मेरी अल्लाह पाक आमिर शहजाद साहब ने इस्लामिया फाउंडेशन की तरफ से जो उम्रे के टिकट निकाले हैं उसमें मेरे नाम निकला है और अल्लाह ताला इनको, इनके ख़ानदान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। खुश हूँ इस बारे में कि मुझे अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर का पुलाव दिया। उन्होंने शहजाद साहब का शुक्र है जिन्होंने मुझे वो भेज रहे हैं, जो उनका शुक्रिया अदा है। जितने भी यहाँ पे कुरानदाजी में मुंतखब हुए हैं वो जो है अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस्लामिया फाउंडेशन के बानी आमिर शहजाद साहब इस सिलसिले को आगे जारी रखने का जो है वो अहद रखे हुए हैं। कैमरामैन टीम के हमरा मुफीज़ुर रहमान, चैनल 5 अहमदपुर शर्किया। सियालकोट में महकमा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का पेशावर गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गदागरों से कब्रिस्तानों और शहर के चौकों चौराहों की सफाई कराने का फैसला कर लिया गया। सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर मुतअद्दिद बार पके जाने के बावजूद भीख मांगने से बाज न आने वाले भिखारियों सब स्पेशल सैनिटरी वर्कर्स का काम लिया जाएगा। 2 दर्जन से ज्यादा पेशावर भिखारी, जिनमें से अक्सरियत दूसरे अजला की है, उनको पकड़कर कब्रिस्तान बाबुल शहीद में सफाई सुथराई के काम पर लगा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी सलमा बट का मरी पहुंच गई। रमज़ान सहूलत बाजार का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी सलमा बट ने मरी का दौरा किया और डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शिराजी के हमरा रमज़ान सहूलत बाजार का जायजा लिया और दुकानदारों से और आवाम से मुलाकात की। सलमा बट का कहना था कि मुस्तहकीन को 10-10 हज़ार रुपये की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है, जिसकी तस्दीक खवातीन से भी की गई। उन्होंने मज़ीद ऐलान किया कि मरी में मॉडल बाजार कायम किए जाएंगे ताकि साल भर आवाम को सहूलत मुयसर आ सके। आरिफाला में हाईवे हुकाम की नाअहलिया और गफलत शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। मेन भावलनगर रोड और बेली दिलावर रोड की तामीर हो गई। आरिफाला शहरियों का कहना है हाईवे हुकाम की जानिब से रोड की तामीर का काम शुरू किया गया था, लेकिन शुरू होते ही काम रुक गया, जिस वजह से ज़ेर तामीर सड़क पर सफर करना इंतहाई मुश्किल हो गया। रोड पर पड़े हुए पत्थरों से आए रोज ट्रैफिक हादसात और गर्दो गुबार से सांस लेना भी मुश्किल हो गया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन, कमिश्नर साहिवाल और वज़ीर आला पंजाब से हाईवे हुकाम की सुस्ती खत्म करके रोड की तामीर को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।